Hello friends. So in the last class we have discussed about the rational number, especially what is rational number. The number which is in the form of p by 2, they all are known as the rational numbers. And today we are going to solve the exercise exercise 1.1. But here we will use the different properties which we have already discussed in the last class. We have discussed the closure property, associative, commutative, distributive, and more concepts like the additive inverse, multiplicative inverse, and additive identity and multiplicative identity. We know very well that what is the additive identity. Additive identity is 0, because if we add 0 with any number, that answer will not change, that original number will remain as it is. And as well as in the multiplication, if we will multiply 1 with any number, answer will be the same number only. So there is no any change in the multiplication whenever we multiply by 1. तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स स्टार्ट. The first question that is using appropriate properties find the first question that is minus 2 by 3 multiplied by 3 upon 5 plus 5 by 2 minus 3 upon 5 multiplied by 1 by 6. So here we have to solve this question, but one condition is given, and that condition is we have to use the appropriate property. So by only the properties we have to solve these questions. So let's start with the properties, but whenever we want to use the properties, first of all just observe the question and just identify that which property here we can use. So first of all I am just going to identify the terms. So this is the first term, second one and the third one. Total 3 terms are there. Now out of that 3 terms, I will just identify the common numbers. Is there any common number? Yes. 3 by 5 and then 3 by 5. In the first term there is 3 by 5, as well as in the last term there is 3 by 5. So one thing I can do here, that I can take it common. So first of all I just need to change the order of second term and the third term. Okay. Because I just want to take it common. So I am just going to do minus 2 by 3 multiplied by 3 upon 5. Now the third term I will write minus 3 upon 5 multiplied by 1 by 6. So the second term is remain, I will write at last, that is 5 by 2. Okay. So basically what I did, I just changed the order. How I did that? Second term and third term. I just shuffle the second term and third term. So here which property we used? This property is the commutative property. So here we need to write that which property we use. So here we use commutative property. Okay. Whenever you use the properties, you have to mention over there. Okay. So anyone can identify that which property you used over there. Now I will just take common 3 by 5 from the first term and the second term. Okay, here is 3 by 5, here is 3 by 5. So let's take it common. So 3 by 5 is common now. Now remaining numbers we will write. From the first term I have taken 3 by 5 as common, so remaining that is minus 2 by 3. In the second term I have also taken 3 by 5 common, but minus sign is there because we didn't take minus sign as common. So minus 1 by 6, and this plus 5 by 2, that is as it is. Okay. Now in the next step we will write that, but here just remember one thing, here also we have used one property. Which one is that? That is distributive. Actually we reverted that. Whenever we just do the multiplication, here is the multiplication sign. So in the distributive property we use actually 3 by 5 multiplied by minus 2 by 3, and again 3 by 5 multiplied by minus 1 by 6. But for more simplest form I use this one. So let's solve this. This is 3 by 5 as it is. First of all we will solve the bracket. So in the bracket we can observe that there is 2 fractions and the denominators are different. So here I just need to find out the LCM of 3 and 6. Let's do it. LCM of 3 and 6. Here I am doing. We will divide by 2 first of all.
So 3 as it is, 2 3s are 6. Again 3 1 1. Okay. So here I can say that the LCM is equals to 2 multiplied by 3, and that is 6. Okay. So here this is the LCM. Now we found the LCM, that is 6. So I will write denominator as common. Now which number I should multiply with the 3 to get answer 6? Yes, that is 2, and by 6 1. So here the number we will multiply the numerator. So 2 2s are 4, that is minus 4, and 1 1s are 1, that is minus 1. There are different methods to find out the LCM and solve the fractions, basically the addition and subtraction operations. You can use any method. Okay. Now at last that is plus 5 by 2. So now it's very simple to solve. Here 3 by 5 multiplied by minus minus plus 4 and 1 5 by 6, but the sign of bigger number, that is negative. So I am just going to write negative, plus 5 by 2. Okay. Now let's write this on the second slide, and then we'll solve over there. So here we have 3 by 5 multiplied by minus 5 by 6 plus 5 by 2. Let's do it. That was 3 by 5 multiplied by minus 5 by 6. 3 by 5 multiplied by minus 5 by 6 plus 5 by 2. So here is the multiplication, so we will multiply that as 3 5s are 15 minus 15 upon 5 6s are 30 plus 5 by 2. You know very well that how to do multiplication, Anna. So whenever we do the multiplication, that is very easy. We have to just multiply numerator numerator and the denominator denominator. Okay. Now the denominators, that is 30 and 2. तो अभी क्या करेंगे हम? Simply we have to take the LCM again. So let's take the LCM of 30 and 2. 30 and 2. Okay. We will start with the number 2 because this is the prime factorization method to find out the LCM. So we will start with prime numbers, and the smallest prime number you know very well, that is 2. So start करते हैं 2 से. Okay. Now we will divide 30 by 2. अभी 30 को 2 से divide करके जाएंगे तो मिलेगा 15. अगर पता नहीं चल रहा है तो 30 को 2 से divide कर लेना, है ना, जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा, that is 15. And 2 1s are. Now we cannot divide any number by 2. So we can move with the next prime number, that is 3. Yes, here 15 can be divided by 3. So 3 5 are 15 and 1 as it is. Again, I cannot divide by 3. So next prime number, that is 5. So let's divide by 5. 5 1s are. LCM is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. 2 3s are 6, 6 5s are 30. This is LCM. We will use here तो अभी हमें जो भी एलसीएम मिला है अभी हम यहाँ वहाँ पे यूज करेंगे. 30 एलसीएम मिला है. तो अभी मैं एलसीएम दूसरी मेथड से करके दिखाता हूँ. हमने एलसीएम तो फाइंड कर लिया, अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे. हियर इज 30. तो पहले जो भी नंबर है वो नंबर लिख लेते हैं. वी हैव द नंबर दैट इज माइनस 15 अपॉन 30. ओके. 30 को मैं क्या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा. 30 1s are 30. ओके. बाय नो एनी नंबर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 1 1. This is addition sign as it is. Here is 5 by 2. So 5 by 2. Now denominator is 2. By which number I should multiply to 2 to get answer 30? Here 2 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे आंसर 30 मिले. So we know very well 15 2s are 30. So we need to multiply by 15. So 15 upon 15. Now again simply do the multiplication. 15 1s are 15. So that is minus 15 because minus plus minus, and 30 1s are 30. This addition sign as it is, and here 5 into 15. 15 5s are 75, and at last 15 2s are 30. So simply we will do the addition. Minus 15 plus 75. We will write like this: minus 15 plus 75, and the denominator is common because now that is the same.
Okay, there is one rule we know very well why to take LCM, because if denominators are not same for any rational number of the fraction, at the time we need to make it same and then we can use that. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Here minus and here is the plus sign, so minus plus minus, so minus करेंगे 75 minus 15, that is 60, and denominator is 30. Here I can just reduce the term. इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 0 0 कैन बी कैंसल. 6 कैन बी रिटन एज 3 2s are and here 3 3 cut it. So the remaining number, that is 2. So our answer is 2. Okay, here 2 is our answer. So this is how we can solve any questions by using the appropriate properties. More properties also we can use here, but I have used only one property. So because the condition is given, by using the appropriate property we have to solve. So required property, that is minimum 1. If you want to use the more properties 2 3, that is according to your convenient, you can use the properties. Fine. Chaliye next. The second question. Here also we have to use the properties. First of all, identify the terms. Okay, whenever by using the properties we have to solve the questions, the first thing is identify the terms. अगर terms आपको पता चल गए, terms आपने identify कर ली, तो वहां से common number निकाल के या कुछ ना कुछ करके आप properties use कर पाओगे. तो चलिए फटाफट से पहले तो हम term identify करते हैं. This is the first term, second term and third term. अगर term identify करना कैसे करते हैं नहीं पता है तो समझ लो addition और subtraction sign से term different होती है, अलग होती है. Multiplication division sign से term अलग नहीं होगी, वो एक ही term कहलाएगी. Here is multiplication sign. Yes, here is negative sign, but this number is negative. That is not subtraction. So this is the whole one term. Here the negative sign, so it's separated as 1 by 6 multiplied by 3 by 2. Here is multiplication sign. तो ये दोनों भी एक ही रहेगी, अलग नहीं होगी. और as well as यहाँ पर. Now just identify the common numbers. Is there any common number available? Yes, I can see the common number 2/5 and 2/5. तो 2/5 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट इज द कॉमन नंबर. बट अभी कॉमन लेना है तो मतलब अगेन आई जस्ट नीड टू shuffle the terms, the first term and the last term. So let's do it. So here we will write like this: 2/5 multiplied by minus 3/7. Last term we will write the second 1/14 multiplied by 2/5, and the second term we will write at last, that will be 1 by 6 multiplied by 3 by 2. So which property we used here? That is commutative. Okay, because commutative property allows us to shuffle the numbers to change the order in the addition. So we will write here the commutative property. अब जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हो वहां ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है, याद रखना है चीज. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे पास है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2. वापस आपको टर्म दिखा देता हूं. ये हमारे भी फर्स्ट टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म. ओके, अभी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई नंबर कॉमन है. कौन सा नंबर कॉमन है? दैट इज 2/5. सो हियर वी विल टेक 2/5 एज द कॉमन. तो 2/5 को मैंने कॉमन ले लिया. तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? हियर इज माइनस 3/7 प्लस साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/14. और लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो अभी कर सकते हैं माइनस साइन एज इट इज 1 3 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर हम रैशनल नंबर का करते हैं तो उसमें सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12. डन. ओके, यहाँ पे इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी नहीं करूंगा मैं, देखते हैं फिर अगर जरूरत पड़ेगी लास्ट में कर लेंगे. Okay, now see, in the bracket we have the two fractions to rational number. To add that rational numbers, definitely denominator should be same, but that is different. For that I just need to take LCM. चलिए LCM निकाल लेते हैं पहले. यहाँ पे LCM निकालता हूँ मैं 7 और 14 का. 2 से स्टार्ट करेंगे because we are using the prime factorization method and the smallest prime number is 2. So we have to move in the order 2, 3, 5, 7, 11 like that. चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से.
2 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इट इज 2 14 को डिवाइड कर सकता है, यस, तो आंसर मिलेगा 7। ओके, अभी 2 से नहीं पॉसिबल नहीं है, तो 3 से ट्राई करो, 3 से भी नहीं है, 5 से ट्राई करो, 5 से भी नहीं है, देन नेक्स्ट नंबर इज 7, 7 से ट्राई करो, होगा, यस बिल्कुल होगा। तो चलिए 7 से करते हैं, तो 7 1 1, तो हमें यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है 2 into 7, दैट इज 14, तो एलसीएम 14 मिल गया। ओके, अभी एलसीएम तो मिल गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर 14 करने, जो भी एलसीएम मिल रहा है हम वो सिंपली कर देंगे। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट है दैट इज 2/5 ब्रैकेट में, यहाँ पे जो ओल्ड मेथड है उसी में करता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। -3/7 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। ओके, यहाँ 7 को मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे मुझे आंसर 14 मिले, दैट इज 2, सो 2/2 प्लस हियर इज 1/14, 14 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 14 एज इट इज है। अगर आप करना चाहो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो, पर नहीं करना है, चलेगा, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर, मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 जा, सो 3 3 कैंसल। चलिए, तो क्या बचा अभी, -1/4, -1/4। सो नाउ दिस इज 2/5 एज इट इज, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 2 जा 6 और -6, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 7 2 जा 14 प्लस 1/14 -1/4। ओके, इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। -2/5 -6/14 -2/5 -6/14, not -2/5, that is +2/5, and here is the plus 1/14 -1/4। ओके, यहाँ से ये नेगेटिव नहीं, यहाँ से भी हटा देते हैं। चलिए, ओके, अभी यहाँ पे एडिशन है, बेस से डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली कर सकते हैं, 2/5 कॉमन लिख देते हैं उसे, 14 न्यूमरेटर साथ में लिख दो, +1 -1/4, इसका आंसर मिलेगा हमें 2/5। ब्रैकेट के बाद कोई भी नंबर है और कोई भी साइन वहां पे नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस, 6 - 1 इज 5, और साइन बिगर नंबर माइनस, एंड डिनोमिनेटर इज 14, -1/4। ओके, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। सो 5 to the 10 -10 एंड 5 into 14, so 14 5s are, that is 70, -1/4. Here I can cut the 0 0, so we have -1/7 and -1/4. One more method we have to just do the addition or subtraction of the rest number, that is cross multiplication. कैसे करते हैं वो भी समझ लो इस बार। चलिए, ये जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए करते हैं, 4 into 1 4, साइन माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 7 1 जा 7, -7, here is -10, that's why 7 4 जा 28। ओके, अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 and 7 that is 11/28, and the sign of bigger number, that is negative. So -11/28, that is the final answer of the question number 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एडिटिव इनवर्स आया, एडिटिव इनवर्स यानी कि नेगेटिव नंबर अगर 3 है तो उसकी साइन चेंज कर दो, -3 है तो उसकी साइन चेंज कर दो। जैसे कि 3 है तो 3 का हो जाएगा -3, मान लो कि -11 है तो उसका क्या हो जाएगा 11। हमें जो भी साइन दी गई है, जो भी नंबर दिया है, उसकी जो भी साइन है, आइदर इफ दैट इज पॉजिटिव we'll write as negative, if that is negative we'll write as positive। कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए, here we have the two numbers 2/8 and -5/9। let's start 2/8, तो इसको लिखने की मेथड कुछ ऐसी है, -2/8। जब भी एडिटिव इनवर्स हम लिखते हैं we have to write like this, क्योंकि जो भी आगे नेगेटिव साइन करो, ब्रैकेट में आपको जो भी नंबर दिया गया है वो ब्रैकेट में लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट में जो नंबर है उसके साइन क्या है, पॉजिटिव है,
बाहर नेगेटिव, सो माइनस प्लस माइनस ये हो गया -2/8। ठीक है, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि करेक्ट और नॉट, व्हाट वी विल डू, जो भी नंबर दिया है और उसका जो भी हमें एडिटिव इनवर्स मिला है दोनों को ऐड करो, आंसर 0 मिलना चाहिए। ओके, ट्राई करना है तो कर सकते हो आप, दोनों का आंसर 0 मिलेगा। चलिए एडिशन करना याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट -5/9। तो अगेन एज आई टोल्ड यू वी विल राइट लाइक दिस, नेगेटिव साइन ब्रैकेट करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिया है वो लिखो -5/9। नाउ हियर this minus sign will multiply to the number which is in the bracket, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज +5/9। दिस इज आवर आंसर। और जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी नंबर दिया है उसकी सिर्फ साइन चेंज करके लिख दो, वही हुआ है। देखिए ये था +2/8, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव लिख दिया हमने। ये जो 5/9 है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कर दिया। ये तो उसकी प्रोसेस है, कैसे करते हैं एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, verify that minus of minus x is equals to x। चलिए चेक करते हैं किसके लिए करना है। we have the two different numbers, x is equals to 11/15 and x is equals to -13/17। ये चीज देखो, ये क्या है, ये कुछ नहीं, एडिटिव इनवर्स ही है ना, एडिटिव इनवर्स ही है। अगर माइनस ऑफ माइनस ये करेंगे तो वो x मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। चेक करते हैं क्या होता है। हमें ये चेक करना है तो पहले ये लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस x is equals to minus of minus x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 11/15, so in the place of x we will write 11/15। so now minus minus plus, so that is 11/15 is equals to x। यहाँ वेरीफाई हो गए। देखिए हमने माइनस ऑफ माइनस x के इक्वल में x बता दिया, जो यहाँ पे पूछ रहे थे। नेक्स्ट नंबर में ट्राई करते हैं। here we have -13/17, so I will write like this just। तो x जो दिया है उसे भी नेगेटिव साइन है तो उसे ब्रैकेट में लिखो। पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला सॉल्व करेंगे। माइनस 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 प्लस, यानी कि +13/17। अगेन माइनस प्लस माइनस, दैट इज -13/17। -13/17 क्या है, x है हमारा, so just write x over there। so this is how we can verify minus of minus x is equals to x। next, find the multiplicative inverse। okay, multiplicative inverse यानी कि reciprocal, basically that is reciprocal। चलिए करते हैं। -13, तो सिंपली क्या कर देना है इसको, मुझे इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, क्या होगा, 1 तो होगा ना। कोई भी नंबर ले लो और उसका डिनोमिनेटर नहीं है, देयर इज 1। रिमेंबर वन थिंग, ओके, हाँ, डिनोमिनेटर नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो है ही वहां पर, तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। -13/1 है तो उसका हो जाएगा 1/-13। अगर वेरीफाई करना चाहे तो कैसे करेंगे, जो नंबर है और उसका जो भी आपको रेसिप्रोकल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आना चाहिए। चलिए करके दिखा देता हूँ। -13/1 जो हमने लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 1/-13, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। ओके, ये करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी फाइंड करना है, सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर दो जो भी नंबर दिया है। रेसिप्रोकल मींस कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उलट सुलट कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। नेक्स्ट नंबर इज -13/19, तो क्या करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल ही करना है, तो ये नंबर ऊपर जाएगा, ये नंबर ऐसे नीचे आएगा, तो हो गया बस। तो चलिए 19/-13, ये हमारा मिल गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और भी नंबर है हमारे पास, 1/5 का हो जाएगा 5/1, तो 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5/1 हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते ना, तो सिर्फ 5 लिख सकते हो आप। आंसर इज 5। हियर यस, दिस इज मच डिफरेंट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर बाद में थोड़ा इसका सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56। ओके, अभी इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम मिलेगा 56/15, 56/15। डन। नेक्स्ट, find the multiplicative inverse of the following। Again we have more numbers,
और एक में कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए, तो न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 2 माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो तो 1 तो हो ही, 1 5 5 हमें मिला 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा 5/2, 5/, तो दोनों को उल्टा कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। -1, अच्छा ये बढ़िया है, -1। चलिए, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 तो है। ओके, अगर इसको मैं लिखना चाहूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1 और 1 को मैं उलट सुलट करने जा रहा हूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, 1/1 ही हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 1/-1 लिख सकते हो, पर इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी मैं मान लो कि -2/5 लिख रहा हूं या फिर ऐसे लिख रहा हूं -2/5, और कभी ऐसे लिख दिया मैंने 2/-5, इन सभी की वैल्यू सेम है, इन सभी की वैल्यू सेम है, दैट इज नॉट मच डिफरेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस थ्री नंबर्स। तो आप नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी आंसर तो क्या हो जाएगा, -1 ही, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं -1/1, और 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते तो हम इसका हो गया -1 ही। चलिए नेक्स्ट, name the property under the multiplication used in each of the following। तो जो भी क्वेश्चन दिया है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें सब बताना है। देखते हैं क्या किया है लोगों ने। -4/5 multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by -4/5 is equals to -4/5। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम ही मिला, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम ही मिला। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई विद 1 एंड इफ आंसर इज सेम देन दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 है, सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो हियर द यूज दैट्स द आंसर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे -13/7 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इज इक्वल्स टू -13/7 17। ये कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि जहां पे आप नंबर चेंज करते हो, सफल करते हो, फिर भी आंसर सेम रहे, दैट इज क्लोजर, सॉरी नॉट क्लोजर, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउज यू टू सफल द नंबर्स और फिर भी आंसर सेम ही रहेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, सो हियर दे यूज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Next, name the property again. -19/29 multiplied by 29/-19 is equals to 1। कुछ समझ में आया? देखिए ये नंबर -19/29, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल किया है, पता चला है ना, तो ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Next, multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16. So first of all we need to find the reciprocal of -7/16. So here we will find that reciprocal of -7/16 is equals to क्या हो जाएगा, 16/-7। Now we have to do the multiplication of 6/13 and 16/-7 because 16/-7 that is the reciprocal of -7/16. So here that will be 6/13 multiplied by 16/-7. Okay, so simply 16 multiplied by 6, 16 6 are 96, and 13 multiplied by 7, 13 7 are 91, and plus minus minus 96/-91. Done. Next, tell what property allows you to compute 1/3 multiplied by 6 multiplied by bracket 6 multiplied by 4/3 as 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3।
यहाँ पे ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास, 1/6 सॉरी 1/3, 6 एंड 4/3, तीनों मल्टीप्लिकेशन में। पर यहाँ पर हम लोगों ने 2 नंबर की एक पेयर बनाई है, 2 नंबर की एक पेयर बनाई है। अभी ऑर्डर में चेंज नहीं किया, ओके, ऑल द नंबर्स आर एज इट इज, दैट इज 1/3, 6, 4/3, दे जस्ट चेंज द ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों ने इसकी पेयर चेंज कर दी, पहले 2 नंबर को पेयर बना दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है हमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दे यूज associative property. Fine. Next. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 integer 1/8? चेक करते हैं क्या कहा है कि जो 8/9 है, 8/9 है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो पहले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे, अगर वो मिल रहा है तो है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है वो है -1 इंटीजर 1/8। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद देख पाएंगे। तो पहले कन्वर्ट करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो मिला 9/8, माइनस साइन है तो मैं माइनस कर दूंगा। चलिए, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने जाऊंगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे मिल जाएगा -8/9, -8/9। तो ये तो यहाँ पे सिर्फ 8/9 दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा 9, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 integer 1/8 is -8/9. This is the reason. Okay. Next. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integers 1/3? Let's check. पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 3 1 3 3 9 9 and 1 10/3, 10/3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं 10/3 का। Inverse of 10/3 is equals to 3/10। तो भाई ये तो 3/10 मिला, यहाँ 0.3 दिया है, तो मतलब नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, दे जस्ट चेंज द फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अगर 3/10 को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा क्या हो जाएगा? 0.3 ही हो जाएगा, 0.3 ही हो जाएगा। तो मतलब यस, आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो ऐसा रेशनल नंबर कि उसका रेसिप्रोकल नहीं है, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो ऐसा एक ही नंबर है, दैट इज 0। कैसे? 0 का रेसिप्रोकल कर लो, 0 का रेसिप्रोकल करना है, चलिए देखते हैं। 0 को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 तो है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा? 1/0, बट दिस इज इनवैलिड फॉर्म, है ना? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इफ there is 0 in denominator then that is not a valid rational number, because the definition of rational number says that if we can represent any number in the form of p by q, then that is rational number where p and q are integers and q is not equals to 0। ये दो कंडीशंस थी, हमने स्टार्टिंग में देखी थी, आपको याद होगी। तो उसी कंडीशन की वजह से यहाँ पे 1/0 जो आ रहा है that is not possible, so that's why there is only and only 0 which does not have any reciprocal. Next, the rational numbers that are equal to the reciprocal। ऐसा rational number कि उसका हमें ऐसा rational number कि जिसका reciprocal फाइंड करें तो वो दोनों इक्वल ही हो, जैसे कि 1, क्योंकि 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 तो है। ओके, उसका रेसिप्रोकल फाइंड किया, मुझे 1/1 ही मिला, ये दोनों तो सेम मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है। ओके, दूसरा एक नंबर है -1, क्योंकि -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसका भी आप कर लो 1/-1, ये दोनों सेम में हो जाए, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आप माइनस साइन ऊपर करो नीचे करो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अगेन दिस बोथ आर सेम. तो हमारे पास जो आंसर मिले हैं दैट इज 1 एंड -1. ये दो नंबर हैं. ठीक. नेक्स्ट, the rational number that is equal to its negative. The rational number that is equal to its negative. तो उसका अगर नेगेटिव करो तो भी आंसर आपको वही मिल रहा है, कोई चेंज नहीं मिल रहा. तो ऐसा एक ही है 0. क्योंकि 0 को माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. 0 इज आइडियल, तो वहां पे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा. सो दैट इज 0. फिल इन द ब्लैंक. The first one, 0 is blank reciprocal. 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं अभी हमने डिस्कस किया. 0 has no reciprocal. 0 का रेसिप्रोकल नहीं मिल सकता. 0 has no reciprocal. The numbers blank and blank are their own reciprocals. तो the numbers, दो नंबर है ऐसे कि जो खुद के ही रेसिप्रोकल है. अभी डिस्कस किया 1 एंड -1. इन दोनों का रेसिप्रोकल फाइंड कर लो, खुद ही आके खड़े रह जाएंगे, है ना. हाँ, उसको बोलो रेसिप्रोकल हो जाओ, तो रेसिप्रोकल उलट सुलट होने के बाद भी वैसा वैसा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज. -5 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. -5 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1. इसका रेसिप्रोकल करो तो उलट सुलट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/-5. सो आंसर इज 1/-5. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x. तो इस को x को ऊपर जाने दो, 1 को नीचे आने दो, तो क्या हो गया 0. तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो दिया है where x is not equals to 0. वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर x यहाँ पे 0 हो जाता और ये इनवैलिड फॉर्म है तो इसका पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वहां पे कंडीशन दी हम लोगों ने. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ ब्लैंक. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर ले ले उसका अगर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा. अरे क्या मिलेगा भाई, रेशनल नंबर ही मिलेगा. हाँ, सो दैट इज रेशनल नंबर ओनली. नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर हम पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर एक है, अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा. वो मिलेगा Okay, so here we have almost completed the exercise 1.1. Now in the next class we will discuss about the exercise 1.2 as well as the theory, the basic concept for the exercise 1.2, and then we will start the exercise 1.2. But before you just go through that videos, just complete this exercise properly. Just write down in your copy by your own, and if you have any doubts, okay, you can write in the comment. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.